Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture regarding sheet pile wall with anchored bulkhead and some numerical portion in Unit 5, Geotechnology of 6th semester BTech students. So, I will start. I already made some previous lectures about the sheet pile wall with anchored bulkhead. Okay. So I will start with anchored bulkhead. So what is anchored bulkhead? I already told about this. When we will construct sheet pile wall, we have to tie that wall at the upper surface for prevention the movement. Okay. Water sheet pile wall, I already know it is a waterfront or earth retaining structure. It is a retaining wall type structure we construct for different purposes. For example, if we have to construct coffer dams, we will make number of sheet pile walls around that particular site. So if that sheet pile wall is tied up with tie rods or anchor rods at near the surface, it will known as the anchored bulkhead. Okay, so it is anchored bulkhead. Now, what is the purpose of providing this anchored bulkhead? The ties or anchored rod reduce the lateral deflection and bending moment and depth of penetration. Anchored bulkhead are extensively used in waterfront structures. Anchored bulkhead are extensively used in waterfront structures. आप anchored bulkhead का waterfront structures में इस तरीके से sheet pile wall को construct करते हैं कि उसके upper portion को dredge lines के ऊपर के portion को आपको tie up करना पड़ता है जिससे कि उसमें कोई भी movement ना हो, deflection ना हो और वो properly उस area को cover करके रखे, right? They are constructed by driving raw sheet to a required depth. As I already told about the sheet pile wall in my previous lecture, so you may understand this why how we can construct a sheet piling. The soil in front of wall is raised out to required depth in front of wall and behind the wall is backfilled with suitable soil. जब हम इसका construction करते हैं तो ड्रेस लाइन के ऊपर की soil को पहले remove कर देते हैं. After the digging process, we will just fill that portion with suitable soil material. The wall is supported at the top by tie rods and bottom by passive earth resistance. जब ऊपर के पोर्शन को टाई रॉड से टाई अप किया जाता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं. तो as I already told you, this is a sheet pile wall. This is also a figure. This is a sheet pile wall. This is a dredge level. This is here we tie up that sheet pile wall with some anchor, some fixed points, so the deflection will be prevented, but the whole movement cannot prevent क्योंकि थोड़ा बहुत रोटेशन होता है. अगर थोड़ा बहुत रोटेशन हो रहा है तो इसमें बेंडिंग मोमेंट तो होगा, बट आप इस पर्टिकुलर शीट पाइल में देखें यहाँ से सॉइल प्रेशर एक्सर्ट होगा क्योंकि आपने जब इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया बाद में यहाँ की जो बैक फिलिंग कर दी है सॉइल की तो यहाँ से सॉइल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है. अगर पी एक्सर्ट होगा तो यहाँ से पीपी भी एक्सर्ट होगा. सो दीज टू टर्म्स आई एक्सप्लेन्ड हियर एंड dredge level up to which the soil will be excavated. ये पैसिव अर्थ प्रेशर जोन है, ये एक्टिव अर्थ प्रेशर जोन है. So how anchored bulkhead determined? This is very important question. Normally comes in examination. How anchored bulkhead determined? Always remember 2 points. These are of having 2 methods: free earth support method and fixed earth
सपोर्ट मेथड. These two you may write down. ये नाम से ही पूछे जाते हैं, फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड एंड fixed earth support method. First is free earth support method. In free earth support method, depth of penetration is not sufficient to provide the resistance. इसमें जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होती है, अगर आप कहीं पे देखते हैं कि हमें ऐसी साइट है जहां पे वाटर टेबल बहुत डाउन है और आपको शीट पाइल एक कम डेप्थ तक पेनिट्रेट करा के वहां पे वाटर की एंट्री को रोक सकते हैं, या फिर depth of penetration come, then you will construct that sheet pile with the help of free earth support method. In this method, the wall is assumed to be freely supported by tie rods at the top. यहाँ पे वॉल को हम ये एज्यूम करते हैं कि फ्रीली सपोर्टेड टाई रॉड से एट द टॉप. अगर फ्रीली सपोर्ट है टाई रॉड से, इसका मतलब है कि इसमें बेंडिंग मोमेंट कम है. पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल एट द बॉटम, हमेशा पैसिव फोर्स लगता है. अगर एक्टिव इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द वॉल लग रहा है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में पैसिव प्रेशर लगेगा. एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वॉल एज वेल एज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ वॉल आर शोन इन दिस फिगर. इसके बाद ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, बस लिटिल इंट्रोड्यूस आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस. T is the tension in the tie rod. Tie rod जो आप जिससे आपने टाइप किया उसमें T tension है. D is the depth of penetration below the dredge line, and P is the active earth pressure. So what we are doing here, we will take the moment about the toe line. इस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट हम मोमेंट्स निकाल देते थे सारे फोर्सेस का और उसको जीरो कर देते थे. क्यों? क्योंकि इस लाइन के अबाउट मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एंकर्ड है, फिक्स है. सो PA into 2/3 H plus D. 2/3 पे हम मान के चलते हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो H plus D माइनस A. ये स्मॉल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A है तो हम माइनस A करते हैं. इसमें आप इसमें देखिए यहाँ पे PA H plus D minus A. PA 2/3 H plus D minus. Similarly, PP जो पैसिव प्रेशर है into 2/3 D plus H minus A. तो यहाँ से हम इस D को कैलकुलेट कर सकते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ को. सिमिलरली इन फोर्सेस को अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते थे, इस डायरेक्शन में PA लग रहा है क्योंकि टुवर्ड्स द वॉल PA, अवे फ्रॉम द वॉल PP, और PA अगर एंकर्ड यहाँ किया है तो ये PA भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो PA माइनस PP माइनस T इज इक्वल टू 0. आप यहाँ से जो टाई रॉड में जो भी T टेंशन डेवलप्ड हो रहा है आप वो निकाल सकते हैं. ओके, यू मे ड्रॉ दीज फिगर्स. दिस इज फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड. नाउ वी विल talking about fixed earth support method. Okay, in fixed earth support method, depth of penetration is adequate and soil below the dredge line provides suitable anchorage. आप इसमें क्या होता था, हम टाई रॉड से टाई अप करते थे और फ्री सरफेस आप एज्यूम करते थे, मतलब बेंडिंग मोमेंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ जिसके अबाउट रोटेशन हो सकता है वो आपको इसमें मिलता है. इसमें क्या होता है कि हम पेनिट्रेशन डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से ड्रेज लाइन के नीचे सॉइल जो शीट पाइल वॉल है उसमें मोमेंट ज्यादा होगा, इसलिए हम उसको नीचे एंकरेज करते हैं जिससे कि वो एक पर्टिकुलर फिक्स हो जाता है. The wall acts as the propped cantilever beam cannot rotate freely at its lower end. Okay. जब नीचे वाला पोर्शन पूरी तरीके से फिक्स हो जाता है, वहां रोटेट नहीं हो सकता है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका सडनली चेंज होता है. मैं आपको अभी आई विल शो सम अदर स्लाइड्स which these okay. इसमें देखिए आप, दिस इज अ शीट पाइल वॉल, दिस इज ड्रेज लेवल,
जिसके अंदर की ये आपके अर्थ में है, ये टेंडन या टाई रॉड यहाँ पे इसको एंकर्ड प्लेट से टाई अप कर रखता है। तो फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड में तो ये फ्रीली है, और फिक्स्ड अर्थ में यहाँ पे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा, तो हमें यहाँ पे इसको फिक्स करना होता है। ओके, यू कैन राइट दिस थ्योरी पोर्शन। आप ये देखिए, ये शीट पाइल वॉल है up to h height. This is a dredge level. This is d, depth of penetration. In free earth support method, an anchorage sheet pile is said to be free earth support when the depth of embedment is small and pile rotates at its bottom tip. यहाँ पे पाइल इसके बॉटम टिप के अबाउट रोटेट कर सकता है। अगर इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से अर्थ प्रेशर लग रहा है, तो ये डायग्राम ट्राइंगल ये बनेगा। यहाँ से प्रेशर लग रहा है तो हम इसको ये लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, के गामा एच के गामा डी इस पोर्शन के लिए। इसके लिए एच प्लस डी ले लेंगे। हमेशा ट्राइंगल ही क्यों बनता है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि प्रेशर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अपर सरफेस पे 0 धीरे धीरे इंक्रीज करता है, मैक्सिमम बॉटम पे होता है, इसलिए डायग्राम हमेशा ट्राइंगल बनता है। Okay, so you may draw this diagram for free earth support method. An anchorage sheet pile is said to be free support when depth of embedment या depth of penetration is small and pile rotates at its bottom. यहाँ पे free support है, bottom पे rotation हो सकता है, the base of pile is relatively free to move और pressure resistance यहाँ पे movement हो सकता है आपका। The lateral pressure increase linearly with depth. यहाँ पे आप देखिए ये प्रेशर लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो फ्री सपोर्ट है, धीरे धीरे प्रेशर डाउनवर्ड इंक्रीज होता जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड। इसमें आप देखिए सेम फिगर है, क्योंकि ये अर्थ प्रेशर लगता है तो यहाँ ट्राइंगल बनेगा, यहाँ से प्रेशर लग रहा है इस वॉल पे तो ये ट्राइंगल बनता है। ये मैंने जो आर्क बना रखा है ये प्रेशर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को शो किया हुआ है। कैसे, जस्ट अ मिनट, you may read here, an anchor sheet pile is said to have free earth support method when the free नहीं fixed या fixed होना चाहिए, fixed earth support when the depth of embedment is large and the bottom tip of pile is fixed against rotation. बॉटम का जो पाइल पोर्शन है वो फिक्स होना चाहिए, रोटेशन वहां नहीं होगा। लेकिन रोटेशन नहीं हो रहा है इसलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में चेंज होगा। आप किसी चीज को प्रिवेंट कर रहे हैं तो वहां पे मूवमेंट ज्यादा होता है फोर्स करने की वजह से, इसलिए डायग्राम इस शेप में शो हुआ है, क्योंकि ये पोर्शन यहाँ पे फिक्स किया हुआ है एनी हाउ, एक प्रॉब्लिक कैंटिलीवर की तरह। तो यहाँ पे मूवमेंट एक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एक आर्क एक डिफरेंट शेप में हमने शो किया हुआ है। सो देयर इज अ चेंज इन कर्वेचर ऑफ पाइल, डेफिनेटली उसमें चेंज आएगा क्योंकि आपने नीचे उसको फिक्स किया हुआ है। एंड हेंस इन्फ्लेक्शन पॉइंट अकर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट अकर का मतलब है कि ऐसा पॉइंट इसमें मूवमेंट आप रोटेशन हो नहीं पा रहा है लेकिन रोटेशन होना चाहिए, इसलिए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक एज्यूम कर लेते हैं उसमें। फिक्स्ड में आप ये मान के चलिए कि बेस को फिक्स किया जाता है, रिलेटिवली फिक्स्ड, ओके, और अर्थ फ्री में नहीं किया जाता और उसको स्मॉल डेप्थ के लिए हम लोग फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड का यूज करते हैं, इसका लार्ज डेप्थ के लिए करते हैं। लेटरली प्रेशर हमेशा डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, इसलिए ट्राइंगुलर आपका ये प्रेशर डायग्राम इसका बनता है और इसका मैक्सिमम प्रेशर बॉटम पे होता है किसी भी टाइप की सॉइल के लिए। तो दीज वर द टू मेथड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस इसमें फिगर्स ड्रॉ करने और इस थ्योरेटिकल पोर्शन को एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज अ फिगर फॉर फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड, यू मे जस्ट ड्रॉ दिस ओनली। ये प्रेशर डायग्राम है, ये शीट पाइल वॉल है। Sometimes a very important question is asked by the examiner in the examination, that is comparison between free earth support method and fixed earth support method. तो फर्स्ट कंपैरिजन अभी मैंने आपको बताया कि फ्री एयर सपोर्ट मेथड स्मॉल डेप्थ के लिए हम यूज करते हैं और फिक्स को लार्जर डेप्थ के लिए पेनिट्रेशन के लिए आप यूज करते हैं। फ्री में
फ्री अर्थ सपोर्ट फ्री सरफेस होता है, इसमें हम नीचे बॉटम ड्रेस लाइन के नीचे जो शीट पाइल होती है उसको हम एंकर्ड या फिर उसको प्रॉप कैंटिलीवर की तरह बनाते हैं। यही सारे पॉइंट्स में आपके मेंशन्ड है, ये आप लिख सकते हो और एग्जाम में आता है। एक एक करके देख लीजिए। द फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड गिव्स अ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दैट वुड अप्लाई व्हेन द वॉल is on the point of failure by rotation about the anchor। ठीक है, यही मैंने बोला। The fixed earth support method is unlikely to represent the true loading at any stage। true loading को represent नहीं कर पाता है ये, but both method tend to overestimate the bending moment in a pile। bending moment दोनों मेथड्स की हेल्प से हम एस्टिमेट करते हैं। दोनों मेथड से बेंडिंग मोमेंट का मतलब है कि आप शीट पाइल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जो भी उसमें अर्थ प्रेशर या वाटर अवेलेबल है, तो वाटर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी वजह से उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ होगा, दैट विल। फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि फ्री में कम होती है। इन फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड डेप्थ इज लेस। Okay, so these are the difference between free and fixed earth support method. Now I will change this topic। This portion I already covered। आपने शीट पाइल वॉल के बारे में पढ़ा, आपने कॉफर डैम्स के बारे में पढ़ा, आपने ब्रेसिंग सिस्टम बेस्ड एक्सकैवेशन के बारे में पढ़ा। दिस इज अ शीट पाइल वॉल, दिस इज ब्रेसिंग। सो आपको ब्रेस्ड कर्ट्स या ब्रेसिंग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इनको कोरिलेट करके लिख सकते हैं। Now I will come on coffer dams again because these are some things which are interconnected to each other। I already told about the coffer dams। coffer dams क्या होते हैं? जो हम स्ट्रक्चर किसी भी साइट को कवर करने के लिए बनाते हैं, वेदर वाटर के एंट्री को रोकने के लिए, डेट इज नोन एज द coffer dams। ओके, आप दोबारा से इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। coffer dam is a structure that retain water and soil that allows the enclosed area to be pumped out and excavated dry। Okay, the coffer dam are commonly used for construction of bridge piers and other support structure built within water। अगर आप कोई ऐसे एरिया पे किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जहाँ पे पानी की पेनिट्रेट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, देन यू हैव टू मेक कॉफर डैम ओवर देयर। ओके, इसको मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे आपको सेलुलर कॉफर डैम की डिजाइन बतानी है। तो अगेन आई जस्ट इंट्रोड्यूस, आपने इसके टाइप्स पढ़े हैं, इसके शेप के बेसिस पे इसको हम क्लासिफाई करते थे। ब्रेस्ड कॉफर डैम्स होता था, सेलुलर कॉफर डैम्स होता था, डबल वॉल शीट पाइल कॉफर डैम होता था, डायाफ्राम एंड सर्कुलर टाइप कॉफर डैम्स भी आपके सेलुलर टाइप कॉफर डैम में आते हैं, जिसमें सेलुलर टाइप कॉफर डैम का मतलब है कि नंबर ऑफ शीट पाइल के थ्रू एक शेप को फॉर्म करना है, और जो शीट पाइल्स हैं दीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सो cellular coffer dam are used only in those circumstances when the excavation size precludes the use of cross excavation bracing। In this case the coffer dam must be stable। okay, एंड डबल वॉल हम कहाँ कंस्ट्रक्ट करते थे? जहाँ पे पेनिट्रेशन रेट ज्यादा होता है या पानी ज्यादा पेनिट्रेट हो सकता है उस एरिया में। आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है और ये ऐसी साइट है जहाँ पे ऑलरेडी कोई वाटर सोर्स अवेलेबल है, तो पानी यहाँ हर समय रहेगा। तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस, यहाँ पे आयरन मटेरियल का यूज करके इस कॉपर डैम से इस एरिया को कवर किया। इसके बाद भी इतना पानी इसमें एंटर कर गया, इस पानी को हम बाद में पंप आउट करके इसको भी निकाल देते, बट वी कैन नॉट प्रिवेंट 100% ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ कॉफर डैम्स। कॉफर डैम्स को हम कैसे बनाते हैं? शीट पाइल से। ओके, सो नाउ वी विल कम ऑन द डिजाइन ऑफ cellular type coffer dams। This is very important question and I am just seeing the 5 years papers, in that it will come around 10 marks।
every year. So that is why I am just taking this question. So write down design of cellular coffer dam. In theory, all it will very important, I think, diaphragm type coffer dam and circular type. But the design of cellular type coffer dam is generally asked by the examiner in the examination. Okay, so what is the design portion? This one. I am just showing some important notes. You may note down from this figure. Design of cellular coffer dam on rocks. Okay. Design of cellular coffer dam on rocks. The design of circular cellular के ही टाइप्स होते हैं आपकी सर्कुलर एंड डायफ्राम. सेलुलर टाइप कॉफर डैम में अगर आपको सर्कुलर टाइप का कॉफर डैम डिजाइन करना है देन यू हैव टू फॉलो दीज मेथड्स. फर्स्ट इज TVA मेथड, सेकंड कमिंग मेथड एंड थर्ड Brinch-Henson method. Now this is the design parameter we are doing with the help of TVA method, is more commonly used. So first point is we have to find the location of saturation line. First point in the design, location of saturation line. What is the saturation line means? सैचुरेशन लाइन का मतलब आप ऐसे समझिए कि उस पर्टिकुलर जगह पे आप ये देखते हैं कि कॉफर डैम अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो मटेरियल में पानी का एंट्री पॉइंट क्या होगा, व्हाट विल बी द सैचुरेशन लाइन. सो वी विल assume this. For determining the weight of soil in cell, it is required to locate the saturation line. Okay, आप ये देखें, ये इस तरीके से कोई शीट पाइल वॉल है, वहां की सॉइल ड्राई है लेकिन वहां का एरिया वाटरलॉक है, तो आपका पानी सॉइल ड्राई सॉइल में भी आएगा और एक सैचुरेशन लाइन फॉर्म करेगा. दैट लाइन इज नोन एज द सैचुरेशन लाइन. अगर सॉइल डिफरेंट टाइप की है तो भी सैचुरेशन लाइन डिफरेंट होगी, देन यू हैव टू जस्ट मार्क दैट सैचुरेशन पॉइंट. एनालिसिस के लिए हम लोग एक हाफ पॉइंट पे सैचुरेशन लाइन को मान लेते हैं, एक एस्टिमेट करने के लिए कि लगभग शीट पाइल के हाफ पॉइंट तक पानी का लेवल होगा. हाइट ऑफ सैचुरेशन लाइन वी एज्यूम एट द मिड ऑफ एनी शीट पाइल या कॉपर डैम पार्ट. ओके, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ सैचुरेशन लाइन. द सेकेंड पॉइंट इज एवरेज विड्थ. हम जो एक सेल की बात करना है, ऐसे नंबर ऑफ सेल से आप उस एरिया को कवर करेंगे. एक सेल का फिगर बनाया हुआ है तो इसकी विड्थ की अगर हम बात करते हैं देन वी हैव टू टेक द विड्थ, एवरेज विड्थ. हम एक एवरेज एस्टिमेट ले लेते हैं. कैसे? इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया ऑफ वन मेन सेल प्लस एरिया ऑफ वन कनेक्टिंग सेल बाई 2L. ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ वन मेन सेल प्लस एरिया ऑफ वन कनेक्टिंग सेल बाई 2L. आप ऐसे समझिए, ये जो मैंने एक फिगर बनाया हुआ है ऐसे नंबर ऑफ फिगर्स उस एरिया को कवर करेंगे. तो कोई एक मेन सेल एज्यूम करेंगे, उससे कुछ इंटरकनेक्टेड सेल्स भी होंगे, तो एक मेन सेल का एरिया प्लस एरिया ऑफ इंटरकनेक्टिंग सेल्स बाय 2L. तो व्हाट इज 2L? 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ मेन सेल्स. So you can calculate the width from this formula. Sometime it will come around 0.875 D, and D is the diameter of the main cell. So you will just memorize this formula. Okay, and how the diameter will calculate? D is 1h. H is the height of that cell. So you just learn this formula, and this previous one. 3 formulas here. Okay. Now this is third point, safety against sliding. Safety against sliding. आप किसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन करने के लिए आप उसकी डायमेंशंस को निकालते हैं. दूसरा आप ये देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर फेल ना हो. तो फेल ना होने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है कि उस पर क्या क्या फोर्स लगेगा. आप एक बीम डिजाइन करते हो तो उस पर अपकमिंग फोर्स देखते हैं, तभी उसका साइज निकल के आता है. Similarly, we have to design this copper dams sheet pile.
तो हम देखेंगे इसमें फोर्स क्या लगेगा, तो उसी फोर्स का हमने डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बोलते हैं। इस बॉल का सेल वेट आपका W, ओके। आप जो बॉल शीट पाइल जिस कॉपर डैम आप बना रहे हैं उस पर क्या फोर्स लगेगा, दो टाइप की फोर्स लगेंगी। सॉइल जो होगी वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी जिसे हम अर्थ प्रेशर बोलते हैं, एंड जो पानी होगा वो कोई ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसे हम लोग वाटर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द वॉल जो लगता है उसे एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलते हैं, और अवे फ्रॉम द वॉल जो लगता है उसे पैसिव। जब भी एक्टिव लगेगा तो उसका पूरी डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। तो ये मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं जिसमें मैंने एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर को शो किया है H1 और H हाइट पे। अगर ये हम ड्रेज लेवल लें, इतना पोर्शन ऊपर इतना पोर्शन डाउन है, तो ये, और ये मैंने सेचुरेशन लाइन को ड्रॉ कर दिया। सेचुरेशन लाइन के अपर में भी फोर्स लग रहा है, उसकी डाउन, वो हमेशा ट्राइंगल होता है क्योंकि अर्थ प्रेशर हमेशा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ट्राइंगुलर शेप में होता है। तो फोर्स ऑफ स्लाइडिंग क्या हो जाएगा, रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन स्लाइडिंग फोर्स। रेसिस्ट क्या करेगा, रेसिस्टिंग फोर्स अपो प्लस ड्राइविंग। रेसिस्टिंग अगर देखें तो इस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में आपका पैसिव अर्थ प्रेशर प्लस रेसिस्टिंग जो भी फोर्स है, ओके। और ड्राइविंग फोर्स का मतलब है जो उस पे लगेगा, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फेलियर के लिए, वो हम इंक्लूड करेंगे वाटर और सॉइल के प्रेशर को। तो वही मैंने किया, पीएफ प्लस पीपी बाई पीडी। PD is the sliding force which include both soil and water pressure, and PF plus PP आपका रेसिस्ट करने वाला जो बेस, जो सेल्फ वेट और जो पैसिव अर्थ प्रेशर है। तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सारे टर्म्स इसमें लिखे हुए हैं। ओके, तो स्लाइडिंग अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका मोर देन 1 या इक्वल्स टू 1 आता है तो ये स्टेबल रहेगा, एंड इट विल कम इट, if it will come less than 1 then it will be unstable condition. You may also write down the safety against overturning. Cofferdam should be safe failure due to overturning at top if F is resisting force while overturning moment. F की value should be less than, should be greater than and equals to 1 for the safety purpose. So we can also calculate safety against overturning by using resisting moment upon overturning moment. जिस तरीके से ये फोर्स है, हम टो के अबाउट इसका मोमेंट निकाल के भी ओवरटर्निंग निकाल सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के बाद। मतलब आप रेसिस्टिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट करेंगे। रेसिस्टिंग मोमेंट किस क्या होगा, रेसिस्टिंग फोर्स की वजह से जो टो पे लग रहा है, और ओवरटर्निंग मोमेंट जो स्लाइडिंग फोर्स है, जो फोर्स फेलियर के लिए, उसको ओवरटर्निंग मोमेंट बोलते हैं। इससे आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलेगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर कंडीशन पर सेफ होगा या नहीं। सो दीज आर सम important points you should do remember while doing the this design portion. Okay, so you just write down the design of cellular coffer dam on rocks. First point is location of saturation line, second is average width, third is safety against sliding, and fourth is safety against overturning. जिस तरीके से ये मोमेंट फोर्स फैक्टर सेफ्टी निकाला, उसी तरीके से यहाँ पे फैक्टर सेफ्टी आप कैलकुलेट करते हैं। ओके, okay, so this is the whole portion which I covered in anchored bulkhead, sheet pile and coffer dam. This is all the critical and very important portion I covered till now. So thank you very much. If you have any if you have any doubt, then you can contact me anytime. Thank you.